بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر بھائی، آج کا ہمارا کوشچن یہ ہے کہ پاکستانی نوجوانوں میں مایوسی کا جو عنصر پایا جاتا ہے اس کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ پاکستانی پرسپیکٹیو کے حوالے سے یہ $1 بلین کا کوشچن ہے، کیونکہ کسی بھی کنٹری کے جتنے بھی ریسورسز ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو قیمتی ریسورس جو وسائل ہوتے ہیں نا، ان سب سے بڑا بہترین جو ریسورس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہیومن کیپٹل۔ اور ہیومن کیپٹل جو ہوتا ہے وہ یوتھ کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یوتھ جو ہوتی ہے وہ سول ہوتی ہے ہیومن کیپٹل کی، اور کسی بھی کنٹری کے اندر ہیومن کیپٹل جتنا ڈیولپ ہوگا اتنی ہی وہ کنٹری ترقی یافتہ ہوگا۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے اندر اگر کوئی فرق ہے تو بیسیکلی ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کا ہے۔ جن ممالک نے اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کیا، اپنی پرائرٹی کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنے میں نمبر 1 ترجیح دی، تو وہ ممالک آج پیک پہ ہیں۔ وہ آج دنیا کی اکانومی میں نمبر 1 بھی ہیں اور دنیا کو ڈکٹیٹ بھی کر رہے ہیں اور بہترین پروڈکٹس بھی دے رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں وہ ممالک جنہوں نے اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ نہیں کیا، آج یونیورسل پیراڈائم کے اندر ان کا کوئی نام نہیں ہے۔ ان کی معیشتیں IMF اور ورلڈ لیول کے جو ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی سوورنٹی کسی کھاتے کی نہیں رہی۔ پاکستان کے اندر بھی بیسیکلی یہی ہے۔ پاکستان نے اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کرنے میں جتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا بجٹ رکھنا چاہیے تھا اتنا انہوں نے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے جو آج 21ویں صدی جسے ڈیجیٹل ایرا کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل ایرا کے اندر پاکستانی نوجوان کو جو چیز چاہیے گروتھ کے لیے وہ چیز اسے نہیں مل رہی، کیونکہ آج وہ جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ پورے ورلڈ کے اندر کنیکٹڈ ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر دنیا کی بڑی کمپنیز جو ہیں جیسے Amazon ہے، $1 بلین کا بزنس کر رہی ہے، آن لائن بزنس ہے، تو وہاں اس بزنس کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے ڈیجیٹل سکل۔ آپ اگر ڈیجیٹل انٹرپرینیور بننا چاہتے ہیں تو بھی بڑا پلیٹ فارم Amazon کی صورت میں موجود ہے، اپ ورک، فائور پہ۔ لیکن اگر آپ اپنی سروس دینا چاہتے ہیں، حالانکہ پاکستانی یوتھ، آپ یہ دیکھ لیں، پاکستانی یوتھ اپنی سٹرگل اور اپنی انٹلیکچوئل موومنٹ کی وجہ سے پاکستان کو 3 نمبر پہ لے گئی ہے فری لانسنگ کے اندر، ای کامرس کے اندر، آن لائن ٹریڈ کے اندر۔ کاش کہ اگر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ہم نمبر 1 رکھتے تو آج ہم نمبر 1 ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی یوتھ کے اندر جو مایوسی پائی جاتی ہے اس کو ہم اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک قانون ہے، آفاقی قانون، دا لا آف کاز اینڈ افیکٹ۔ یہ بیسیکلی مایوسی ایک افیکٹ ہے، اس کے پیچھے کازز ہیں۔ وہ کازز کیا ہیں؟ اس مایوسی کے پیچھے ملٹیپل کازز ہیں، جن میں سب سے بڑا کاز جو ہے وہ یہی ہے کہ نوجوانوں کو راستہ نہیں مل رہا۔ راستہ بیسیکلی فراہم کرنا ہوتا ہے وہاں کے انسٹیٹیوشنز نے، وہاں کے سٹرکچر نے، وہاں کی گورنمنٹ جو لیڈرشپ ہے ان کی پرائرٹی نے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان کے اندر جو نمبر 1 ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے یوتھ مایوس ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے آپ جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ پالیسی میکنگ کا بھی ایشو آئے گا اور پالیسی ایگزیکیوشن کا بھی ایشو آئے گا، کیونکہ اگر سال 2 سال 3 سال 4 5 سال جو ٹینیور ہے اگر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، ایک دوسرے کو آپ گرانے میں لگے رہیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر اگر ایک گورنمنٹ آتی ہے، انہوں نے جو پالیسیاں دیں اس کے مقابلے میں جو دوسری ان کی گورنمنٹ آئے گی جو اپوزیشن میں پہلے بیٹھی رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنی ایگو ڈرائیون اپروچ کے تھرو اپنے جو حریف ہوتا ہے اس کے سارے جو پالیسی میکنگ ہے، پالیسی میکرز کو بھی پکڑ لے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پروجیکٹس چل رہے ہوں گے ان کو بھی وہ ختم کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے ڈر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیلیور کر جائیں تو پھر پورے کنٹری کے اندر ان کا نام نہ ہو جائے۔ حالانکہ اس سے ہوم لینڈ تو ترقی کر رہی ہے۔ بیسیکلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ایلیمنٹ ہے، رول آف لا کا ایشو، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ادارے نہیں بنائے ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر، آپ کو جیسے یہ آپ دیکھ لیں نا، روڈز ہوتے ہیں، آپ جیسے مطلب ایک موٹر ویز بناتے ہیں، ایسے ڈیجیٹل موٹر ویز ہوتے ہیں۔
ऐसे आपको डिजिटल मोटरवेज बनाने पड़ते हैं जहां पे फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गाड़ियां दौड़ा सकते हैं, क्लाउड टेक्नोलॉजी की गाड़ियां दौड़ा सकते हैं। उसमें आप जो डिजिटल स्किल्स हैं उनके थ्रू आप मूव कर सकते हैं। पहले आप ये देख लें कि पहले पैसा होता था ज़राअत के अंदर, फिर इंडस्ट्री के अंदर आया, उसके बाद आज का जो दौर है वो है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का दौर। पहले एक टर्म यूज़ होती थी हैव्स एंड हैव नॉट, कि किसी के पास मादी वसाइल है तो वो तरक्की याफ्ता होता था, जिसके पास मादी वसाइल नहीं होते थे कहते थे यार ये पसमानदा है। लेकिन आज के दौर के अंदर जिस कम्युनिटी के पास, जिस कौम के पास नॉलेज है उसको आज तरक्की याफ्ता समझा जाता है, उसके मुकाबले में जो नहीं जानते वो तरक्की पजीर हैं। अब आप ये देख लें कि पाकिस्तान का आप अगर स्ट्रक्चर देखें और दुनिया का देखें, मैं कुछ अर्सा पहले पढ़ रहा था कि सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है ना वो $1 बिलियन में है, रिसर्च का बजट। ऐसे ही आप ये देख लें कि टोक्यो शहर के अंदर, जो आप जापान के अंदर है, वहाँ पे 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों की रेशो पाई जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। मशहूर मलेशियन लीडर महातीर मोहम्मद साहब ने फरमाया था कि बग़ैर तालीम के जो जमहूरियत होती है वो डिलीवर नहीं कर सकती। जब तक कौम बाशऊर नहीं होगी उस वक़्त तक कोई सिस्टम भी प्रिवेल नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने डिजिटल वर्ल्ड के अंदर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को देखते हुए, पहले ऑयल को समझा जाता था कि ये सबसे बड़ा वसीला है, ये जो जिन ममालिक के पास ऑयल मौजूद था वो तरक्की याफ्ता थे। लेकिन आज आप ये देख लें कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क भी, उनकी लीडरशिप ने भी ऐसे स्टेप्स उठा लिए हैं जिनकी वजह से वो अपनी इकोनॉमी को तेल की मईशत से निकाल के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर ला रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने इनिशिएटिव लेके गोल्डन वीज़े जारी किए हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने गोल्डन वीज़े जारी किए हैं ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोफेशनल हैं वो आएँ और सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को तेल की मईशत से निकाल के डिजिटल वर्ल्ड में यूनिवर्सल लेवल पे लेके जाएं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरेबिया जैसा अमीर मुल्क भी, उसको भी एहसास हो गया है कि अगर हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ नहीं जाएंगे तो हम कोलैप्स कर जाएंगे। तो पाकिस्तानी नौजवान भी आज अगर माइग्रेशन कर रहा है तो उसकी वजह यह है कि उसे ये रोड्स नहीं फराहम किए गए, जो डिजिटल रोड्स हैं वो अगर फराहम हो जाएं तो अगर पाकिस्तानी नौजवान चौथे नंबर पे फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान को लेके जा सकता है तो कोई इशू नहीं है। हमें बेसिकली करना क्या है, अब आप ये देख लें कि हमें बैक टू द बेसिक्स की तरफ लौटना होगा। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक रियलिटी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये आप देख लें, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये जो शख्सियत है ना, थोड़ा आगे आ जाएं, ये जो शख्सियत हैं इनका नाम है टोनी रॉबिन्स। ये दुनिया के नंबर 1 कोच हैं, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं और यूएसए से इनका ताल्लुक़ है। ये वो शख्सियत हैं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को कोच करते हैं और इसके साथ साथ मल्टी नेशनल कंपनीज़ की टीम बिल्डिंग, उनकी लीडरशिप, हर लेवल पे ये शख्सियत मौजूद होती है। जैसे स्टीफन आर कूवे है, जैसे जॉन सी मैक्सवेल है, एडवर्ड डी बोनो है, वैसे ही ये टोनी रॉबिन्स है। ये आप इसकी बुक देखें, ये किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। ये क्या कह रहा है कि मल्टी नेशनल कंपनियां और दुनिया की जो लीडरशिप वो बना रहे हैं, इस बंदे का माइंडसेट क्या है, इसकी थिंकिंग क्या है। इसकी थिंकिंग को देख के आप हैरान रह जाएंगे और खुश भी होंगे कि क्या चीज़ थी और क्या हुआ और हम क्या कर सकते थे। ये देखें, ये बुक है इनकी, अवेकन द जायंट्स विदन। इसमें ये चैप्टर है बेहतरीन जिंदगी का राज। अब आप दिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि ये लिख रहा है कि दुनिया के तमाम अजीम उस्ताद जैसा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप ये देख लें कि इस शख्स ने एक्नॉलेज किया है कि दुनिया के जितने अजीम मेंटोर थे उनमें नंबर 1 नाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसके साथ साथ माइकल हार्ट ने जो बुक लिखी थी द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ इन द वर्ल्ड, उसने भी एक्नॉलेज किया था कि दुनिया के अंदर जितने लॉ गिवर आए हैं उसमें नंबर 1 नाम आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब आप ये देख लें कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर एक्नॉलेज कर रहे हैं।
तो हमें क्या करना होगा? अगर एक चीज़, एक कदम हम उठा सकते हैं ना अपनी यूथ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल के लिए, तो हमें उनके अंदर से जो एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करना होगा। और वो एहसास महरूमी कब ख़त्म होगा? जब हम उन्हें ऐसा करिकुलम देंगे जो उन्हें अपनी बुनियादों के साथ जोड़ देगा। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अगर यूरोप के स्ट्रक्चर को, यूरोप के लीडरशिप को तैयार कर सकती है, तो हम तो मुसलमान हैं। इकरा से शुरू होने वाला सफ़र ये लीडरशिप के लेवल पे जाता। पूरी दुनिया के अंदर अंधेरे जितने हैं उसकी रोशनी का सबब हम बनते। लेकिन काश कि हमारी प्रायोरिटी जो है वो ईगो और किसी को गिरा के माइंड सेट, जो हमारा फिक्स्ड माइंड सेट है, उसको हम डिलीवर करते ग्रोथ माइंड सेट के थ्रू, लर्निंग एटीट्यूड की तरफ जाते, इकरा का सही मैसेज समझते, तो आज हम भी पूरी दुनिया के अंदर, हमारी प्रोडक्ट भी पूरी दुनिया के अंदर होती। आज हम उस लेवल पे खड़े होते कि दुनिया की मदद कर सकते। मैं समझता हूँ कि अगर हम मिसाल दे दें कि हमारे हमसाए ने अपना चंद्रयान के थ्रू मूव किया और चांद पे पहुँच गया है, तो मैं एक तो जो इंडियन नेशन है उसको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल की, और जो स्ट्रगल करता है कुदरत उसे नवाजती है। उन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नंबर 1 प्रायोरिटी दी। अगर हम भी ये करेंगे, और इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह हुकूमती लेवल पे, हमारे इदारा जाती लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे हम जो रोल प्ले कर सकते हैं हम करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान भी ऊपर जाएगा। क्योंकि आप देखें पाकिस्तानी यूथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सूरत में जहाँ जहाँ गई है उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें मायूस होने की बजाय जिस लेवल पे हमें मौका मिलता है, हम लर्निंग एटीट्यूड को नंबर 1 रखें, तो वो वक्त दूर नहीं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान भी पूरी दुनिया के अंदर सर फहरिस्त होगा। लेकिन ज़रूरी यही है कि आप ह्यूमन कैपिटल पे तवज्जो दें। रोड्स भी अच्छी चीज़ हैं, स्ट्रक्चर भी खड़ा करें, लेकिन इन सारी पॉलिसियों का जो नंबर 1 प्रायोरिटी हो वो होना चाहिए कि आप नौजवानों के माइंड सेट को बदलें। इसके साथ साथ मेरी एक आइडिया है, एक रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तान के बड़े प्रोफेशनल हैं जो रिटायर हो गए हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी में बैठे रहे हैं, डॉक्टर शुएब सडल साहब का नाम आता है, जुल्फ़कार चीमा साहब का नाम आता है, और भी पाकिस्तान के बड़े माइंड सेट हैं। अगर वो चाहें तो वो थिंक टैंक्स बना के यूथ को मोटिवेट कर सकते हैं। वो ऐसे इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं जैसे यूएसए के अंदर या जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके अंदर उनके प्रोफेशनल्स ने ऐसे इदारे खड़े किए जो मंथली अपना मैगज़ीन पे पब्लिश करते हैं, और इसके साथ साथ आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, जिससे ना सिर्फ कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले नौजवानों को फ़ायदा होता है बल्कि जो आम पाकिस्तानी है उसको भी इसका फ़ायदा होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने अच्छे पाकिस्तान में प्रोफेशनल जो रिटायर हैं वो बैठे हुए हैं, वो अपने थिंक टैंक्स बनाएं, और उसमें ना सिर्फ उस सोच को जो वो रिसर्च करेंगे उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, अपोजिशन को फ़ायदा होगा, हमारे इदारों को फ़ायदा होगा, बल्कि जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका भी फ़ायदा है, और आम पाकिस्तानी जो आगे बढ़ना चाह रहा है उसको भी एक ट्रैक और सोच मिलेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसे सैकड़ों की तादाद में थिंक टैंक्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में ना होने के बराबर हैं। तो ये अगर काम शुरू हो जाए, मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई बड़ा बजट नहीं चाहिए, सिर्फ सोच चाहिए, और उनकी जो रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी है वो भी बेहतरीन गुजरेगी, और वक्त के साथ साथ आगे भी बढ़ेंगे हम। थैंक यू।